resultant of any number of coplanar concurrent forces. Concurrent means all the forces passing through the one point. You want to find the resultant of any number of coplanar forces. Let the coplanar forces F1, F2, F3, Fn act at the particle O, and let OX and OY be x-axis and y-axis. And the force F1 makes an angle alpha with OX. F1 makes angle alpha 1 with OX. Similarly, F2 makes angle alpha 2 with OX, and so on. Fn makes an angle alpha n with OX. F2 makes an angle alpha 2, Fn alpha n, and in their resultant are makes an angle alpha with OX. We know that the result part of the resultant of any number of concurrent forces in any direction is equal to sum of the result parts of the component forces in the same direction. Therefore, resolving along OX and OY. Now, result part of the resultant is in the direction of OX, resolving along OX. This is R, क्योंकि R OX के साथ अल्फा एंगल बना रहा है, तो R का रिजोल्व पार्ट क्या आएगा? R cos of the angle. ठीक है. If F is the force, it makes an angle alpha with OX, then F cos of the angle is the result part of F using this formula. So result part of R in the direction of OX, where R makes angle alpha with OX. This is R cos alpha. Similarly, F1 एंगल बना रहा है alpha 1, तो इसका आएगा result part F1 F cos of the angle, F1 cos of the angle. इस तरह F2 कितना एंगल बना रहा है? alpha 2 with OX, तो इसका result part आएगा F2 cos alpha 2. इसी तरह हम बाकी Fn का भी लिखेंगे और इसको हम सम को x का नाम देंगे. इसी तरह जब इसकी, क्योंकि रिजोल्व पार्ट्स निकालने हैं, तो OX की परपेंडिकुलर डायरेक्शन है OY. अब OY की ओर हमने रिजोल्व पार्ट निकालने हैं, तो अगर इस डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट निकालने हैं तो इसका एंगल होगा π/2 माइनस अल्फा. तो इसका रिजोल्व पार्ट इन OX डायरेक्शन है, इसका रिजोल्व पार्ट आएगा F cos ऑफ द एंगल इन OY डायरेक्शन. ठीक है, तो ये बन जाएगा F sin अल्फा. तो ये OY के साथ F π/2 माइनस अल्फा एंगल बनाता है. फार्मूला यही यूज होना है, F cos ऑफ द एंगल, जिस डायरेक्शन के साथ रिजोल्व पार्ट निकालना है उसका एंगल लेना है. तो F cos ऑफ द एंगल इन OY डायरेक्शन, तो आ जाएगा F sin अल्फा. तो इसी तरह से जहां भी cos अल्फा है वहां पर हमने सभी sin अल्फा लिख देने हैं. So this is the sum of resolved parts in the direction of OX, in the direction of OX. This is in the direction OY. Direction OY. तो अब इसको x नाम दिया, इसको y का. तो स्केयर एंड एडिंग दीज फर्स्ट एंड सेकंड, वी हैव r स्केयर cos स्केयर अल्फा प्लस sin स्केयर अल्फा इज इक्वल टू x स्केयर प्लस y स्केयर. इस पूरे को हमने x को और y का नाम दिया. तो यहाँ से इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी. इसको सॉल्व करेंगे तो ये r स्केयर इज इक्वल टू x स्केयर प्लस y स्केयर आ जाएगा. तो r की वैल्यू आ जाएगी √x स्केयर प्लस y स्केयर. दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r. तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड यहाँ से कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, क्योंकि r कोस अल्फा किसके बराबर है? x के बराबर. r कोस अल्फा x के बराबर है, तो कोस अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? x/r आ जाएगी. ठीक है. इसी तरह r साइन अल्फा y के बराबर है, तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y/r. See, these two equations gives the direction of r.
Now we do this question. Three forces of magnitude 5, 10 and 30 acts at the point in the plane. The angle between any two forces is 120 degree. Find the magnitude and direction of their resultant. Let the force act along OX. Take it as x-axis and perpendicular direction as OY, y-axis. तो फोर्सेस O पॉइंट पे एक्ट कर रही हैं 5, 10 एंड 13. इनमें कोई भी दो फोर्सेस ले लो, इनमें एंगल है 120 का. 5 और 10 के बीच भी 120 का एंगल है, 10 और 13 के बीच भी 120 का एंगल है, और 13 और 5 के बीच भी 120 का एंगल. ये हमें गिवन है. लेट R बी देयर रिजल्टेंट. R बी द रिजल्टेंट ऑफ थ्री फोर्सेस मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ OX. Now we resolve, because we use the theorem of resolved parts, that is resolved part of the resultant in any direction is equal to the algebraic sum of the resolved parts of the component forces in that direction. Therefore resolving along OX and OY, तो बिल्कुल जो हमने लास्ट थ्योरम में जैसे रिजल्ट ये वाला यूज किया था कि अब हमने OX डायरेक्शन की ओर वी आर रिजॉल्विंग अलोंग OX, रिजॉल्विंग अलोंग OX. तो R का रिजॉल्व पार्ट अलोंग OX क्या आएगा? R कोस थीटा, क्योंकि R थीटा एंगल बना रहा है OX के साथ. तो दिस इज इक्वल टू रिजोल्व पार्ट ऑफ द कंपोनेंट फोर्सेस. जो तीनों फोर्सेस हैं, जो आ रहा है रिजल्टेंट, इसकी तीन फोर्सेस हैं कंपोनेंट फोर्सेस. अब इनका रिजोल्व पार्ट निकालना है इसी डायरेक्शन में और इनको सम कर देना है. ठीक है, दिस इज द थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स. तो F जो 5 है OX डायरेक्शन में 0 डिग्री का एंगल बनाता है, तो इसका रिजोल्व पार्ट आएगा 5 cos 0, फोर्स कॉस ऑफ द एंगल इन दैट डायरेक्शन. तो 10 कितना एंगल बना रहा है OX के साथ? 120 का, 10 कॉस ऑफ द एंगल. इसी तरह 13 कितना एंगल बना रहा है OX के साथ? 120 240 का. ये 13 240 का एंगल बनाता है OX के साथ. तो 13 cos 240. तो cos 0 की वैल्यू पुट कर दी, cos 120 की वैल्यू ऐसे लिख सकते हैं हम. तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस कोस, और इसकी वैल्यू आ जाएगी -1/2. इसी तरह cos 240 की वैल्यू आएगी 180 + 60. तो 180 + 60 होता है माइनस cos 60. तो इसकी वैल्यू अगेन -1/2 आ जाएगी. तो जब हम इसकी वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा -13/2. Now resolving along OY perpendicular to direction of OX. तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि इसके रिजोल्व पार्ट्स फोर्सेस के अब हमने इस डायरेक्शन में निकालने हैं. तो ये एंगल हो जाता है π/2 माइनस अल्फा. तो उसका रिजोल्व पार्ट उस फोर्स का क्या हो जाता है? उस OY डायरेक्शन में F कोस ऑफ द एंगल. तो ये बन जाता है F sin अल्फा. तो इस जो नंबर 1 में जो हम जहाँ पर कोस लिखा था वहाँ सभी पर हमने साइन कर देना है. तो साइन 0 की वैल्यू भर देनी है, साइन 120 की वैल्यू भर देनी है, और साइन 240 की वैल्यू भर देनी है. ठीक है, तो सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी. तो ये नंबर 1 है हमारे पास. ये नंबर 2 है स्केयरिंग एंड एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड r² cos² थीटा प्लस sin² थीटा कॉमन आ जाएगा. इसका स्केयर और इसका स्केयर ऐड करके ये 49 आ जाएगा. तो ये 1 है, तो r² की वैल्यू 49, r की वैल्यू 7. तो r की जो मैग्नीट्यूड आएगी वो 7 आ जाएगी. अब जब इन दोनों को हम डिवाइड करेंगे r cos थीटा और r sin थीटा इसकी वैल्यू को, तो यहाँ से tan थीटा की वैल्यू ये आ जाएगी, तो थीटा की वैल्यू इतनी आ जाएगी. तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ r विद OX. चलनी नहीं. Now we do the next question. Forces of magnitude 3p, 3p and 5p act along the sides AB, BC, CA of an equilateral triangle ABC. We have to find the magnitude, direction and line of action of the resultant. So the forces act along the sides of the triangle.
तो ये एक फोर्स है हमारी ये 3p, दूसरी फोर्स भी हमने ले ली ये 3p, ठीक है। ये है along AB and this point C, BC के along भी 3p फोर्स है और CA के along है 5p फोर्स। क्योंकि ये हमें इक्विलेटरल ट्रायंगल गिवन है तो इसका मतलब जो ये वाले तीनों एंगल होंगे 60 के होंगे। तो इसका मतलब है, तो ड्यू टू इक्विलेटरल ट्रायंगल ये तीनों एंगल 60 के होंगे, तो ये आउटर वाला एंगल 120 का होगा, ये सभी 120 के एंगल होंगे, ठीक है। तो अब हम तीनों फोर्सेस को एक पॉइंट पे ड्रॉ कराएंगे, एक पॉइंट से पास करेंगी। 3p ये वाली फोर्स के पैरेलल ये फोर्स लिख देनी है, 5p ये इसके पैरेलल फोर्स ये लिख देनी है, 3p ये पैरेलल फोर्स है इसके पैरेलल ये फोर्स कर देनी है। पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि ये एंगल है 3p और 5p में एंगल है 120 का, तो यहाँ पर हम 3p और 5p में जो एंगल रखेंगे 120 का रखेंगे। इसी तरह 5p और 3p में एंगल 120 का, 5p और 3p में भी एंगल हमने 120 का रख दिया। इसी तरह 3p और 3p और इन दोनों में एंगल है 120 का, तो ये 3p और ये 3p इसमें भी हमने एंगल 120 का रख दिया। तो हमने ये तीनों फोर्सेस इनके पैरेलल साइड्स के अकॉर्डिंगली ओ पॉइंट पे मीट करा दी। नेक्स्ट अब हम क्या, एंड लेट आर, अब तीनों फोर्सेस की हमने रिजल्टेंट ले ली आर पासिंग थ्रू ओ, आर मेक्स एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ ओ एक्स को हमने एक्स एक्सिस ले लेना है, ओ वाई को हमने वाई एक्सिस ले लेना है। तो हमें ये पहले तो अच्छी तरह ये समझ लेनी चाहिए कि अगर हमने कोई फोर्स एफ का रिजोल्व पार्ट इस डायरेक्शन में निकालना है और अगर वो फोर्स उस डायरेक्शन के साथ अल्फा एंगल बना रही है तो उसका रिजोल्व पार्ट आएगा फोर्स गुना कॉस ऑफ द एंगल, ठीक है। तो अगर उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स का रिजोल्व पार्ट निकालना है तो फोर्स उस परपेंडिकुलर डायरेक्शन के साथ कितना एंगल बनाती है, π/2 माइनस अल्फा। बाकी फार्मूला वही रहना है, एफ कोस ऑफ दी एंगल, एफ का रिजोल्व पार्ट इस डायरेक्शन में एफ कोस ऑफ दी एंगल ही रहेगा और उस डायरेक्शन में वो कितना एंगल बना रही है, π/2 माइनस अल्फा। तो उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट आ जाएगा एफ साइन अल्फा, ठीक है। तो इस डायरेक्शन में रिजोल्व पार्ट एफ कोस अल्फा आएगा और उसकी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एफ साइन अल्फा आएगा। तो अकॉर्डिंग टू थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट वी नो दैट रिजोल्व पार्ट ऑफ द रिजल्टेंट इज इक्वल टू सम ऑफ द रिजोल्व पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट फोर्सेस, जिनकी ये रिजल्टेंट है उन फोर्सेस, तीन फोर्सेस की उनका रिजोल्व पार्ट का सम कर देना है। दिस इज द थ्योरम ऑफ रिजोल्व पार्ट्स। तो आर का रिजोल्व पार्ट इन द, अब हम रिजोल्व करेंगे अलोंग ओ एक्स। तो ओ एक्स के अलोंग आर का रिजोल्व पार्ट आएगा आर कोस थीटा यूजिंग दिस रिजल्ट। तो 3p ओ एक्स के साथ कितना एंगल बना रही है, 0 डिग्री का, इसका रिजोल्व पार्ट आएगा 3p कोस 0। अब 5p कितना एंगल बना रही है ओ एक्स के साथ, 120, 5p कोस 120, यही फार्मूला लगाते जाना है। अब ये तीसरी फोर्स है 3p, ये कितना एंगल बनाती है ओ एक्स के साथ, ये 120 और ये 120 और ये 120, टोटल एंगल है 240 का। इन दोनों फोर्सेस में ये 120 का एंगल है, ये भी 120 का एंगल है, तो टोटल ये एंगल 3p ओ एक्स के साथ बनाएगी 240 का। तो यहाँ से हमने वैल्यूज पुट कर देनी है, इसकी वैल्यू ये पुट कर देनी है। तो इसको सॉल्व किया, आर कोस थीटा की वैल्यू आ जाएगी -p, इसको नंबर 1 दे देंगे। अब रिजॉल्व करेंगे अलोंग ओ वाई, तो यहाँ पर साइन है, कॉस है, वहां पे साइन लिख देना है। तो आर साइन थीटा, 3p साइन 0, 5p साइन 120, 3p साइन, अब साइन 120 की वैल्यू पुट कर देनी है, 240 की वैल्यू पुट कर देनी है, 0 की वैल्यू पुट कर देनी है।
तो इसको सॉल्व करेंगे तो r sin थीटा की वैल्यू 3√3p आ जाएगी। तो अब ये फर्स्ट सेकंड आगे इनको स्क्वायर और ऐड करेंगे, r स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 आ जाएगी। तो r स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस 3p स्क्वायर, इसकी वैल्यू 4p स्क्वायर आ जाएगी। यहाँ से r की वैल्यू आ जाएगी 2p के बराबर। अब हम जब दोनों को डिवाइड करेंगे यहाँ से tan थीटा की वैल्यू -√3 आ जाएगी। नाउ tan थीटा इज इक्वल टू -√3, तो tan थीटा √-3 होता है tan 120 पे, तो इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले लेंगे तो tan 180 -60, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -√3, तो ये बन जाएगा tan 120। यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 120 आ जाएगी थीटा की वैल्यू। Therefore resultant is of magnitude 2p makes an angle 120 with the direction of OX।